आइए, हम सभी का सौभाग्य है कि ऐसे हमारे परम गुरु साध्वी जी भगवान अनायास से हमें मिल चुके हैं। तो हम सभी लोग गुरु वंदना सभी माँ बहनें करेंगे। इच्छामी खमासणो वंदी उम जावणी जाए निसिही आए। इच्छामी खमासणो वंदी उम जावणी जाए निसिही आए। इचकार सोरा ईसु को तपसर निराबाद सुख संयम जात्रा निर्वहो छोजी स्वामी साता छेजी। ઈચ્છા કારણ સંદેશા ભગવાન અબુઠિયમી અભિંતર રાયમ ખામેવું ઈચ્છમ ખામેમી રાયમ. હાથ આગળ રાખો બધા. ચંકીંચી અવધે પરપતે બતે પાણે વેડે વ્યાવ ચાલાવે ચલાવે ઉચાસણે સમાસણે અંતરપાસે રૂપે ચંકીંચી મજ્જ વીણા પરિણમ સુમુમા બહેરો વતુ ભે જાણમ અહમ ન જાણામી તસમ ઈચ્છામી ખમાસમ ઈચ્છામી ખમાસોંદીમ જાણી જાય નિસિહી આએ. સુખ સાદામાં સાહેબજી. ઈચ્છામી ખમાસોંદીમ જાણી જાય નિસિહી આએ. મથે ઈચ્છા કારણ વાયણા સંદેશાઓ ખમાસમ ઈચ્છામી ખમાસોંદીમ જાણી જાય નિસિહી આએ. ધર્ણેન્દ્ર ગુરુજી जो इच्छा कारण से वायना लेसो इच्छा इच्छामी गवा जान जय निसी आए मथे। सभी लोग दोनों हाथ जोड़िए। साहिब जी ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि आज वर्ल्ड का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन जैन अनुष्ठान है। 12,000 टीचर ऑल ओवर वर्ल्ड में पढ़ा रहे हैं। 70 लाख लोगों ने जैन अनुष्ठान की वीडियो देखी है। और हमने ये दूसरा हमारा ये भक्तावर हीलर समिट है कि ये सभी लोग अलग अलग गांव में शहर में जाकर के जैन धर्म की आराधना साधना करते हैं और आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। सभी लोग दोनों हाथ जोड़ के हुए मस्तक को थोड़ा झुकाएंगे। महामांगलिक का पाठ साहिब जी संभड़ाओ। नमो हरियंताणां नमो सीताणां नमो आयर्याणां नमो वज्रायाणां नमो लोये सब्बसागुणासनो मंगलाणं च सव्येसिं वडमं हवै मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम सूर्यभद्राद्या जैनो धर्मोऽस्तु मंगलम सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। वाणीति स्वामिनी श्रीदेवी जखराय गणपीडिगा गहदिशिपाल सुरिंदा सया विरक्षन्तु जिनपते अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरु। सभी लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाएं। साहिब जी 2 मिनट भक्तामर के बारे में आप बताएंगे। फिर हमारे जस्मिता जी जो खास बेंगलोर से बता रहे हैं वो एक मिनी एक मेडिटेशन कराएंगे और उसके बाद हम आगे के कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। सभी लोग बैठ जाइए। बता बैठ जाओ नीचे खूब शांति थी। ये शांतरागंशिबी परमाणु विश्वं निर्मापिता श्रीभुवनैकललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणवः पृथिव्यां यत्ते समानम परं नैरूपमस्ति। કેટલાય જન્મોની સાધના હોય, કેટલાય ભવોમાં સારી આરાધના કરી હોય ત્યારે આપણને જૈન ધર્મમાં જન્મ મળે છે અને જૈન ધર્મમાં ખાલી આપણે જન્મ લીધો એટલા માત્રથી કેટલા બધા આપણે સુકૃતના સહભાગી બની ગયા છીએ। અને આ માનતુંગ સુરી મહારાજે બનાવેલી આ રચના, માનતુંગ સુરી મહારાજે આ ભક્તામૃત સૂત્ર બતાવ્યું અને આખી બેડીઓથી પોતે આખા વિટળાયેલા હતા અને ફટાફટ બધી બેડીઓ તૂટી ગઈ અને એ આપણને આજે પણ આટલા કાળ પછી પણ એ આજે હયાત છે, આપણા માટે રહેલું છે, આપણા સુખને માટે રહેલું છે। અને સૌથી તો પુણ્યની વસ્તુ એવું છે કે આ જે નિકુંજ ગુરુ જે આપણને મળ્યા છે, વસ્તુ તો ઘણી બધી સારી હોય પણ એ બતાવનારા કોક જોઈએ, બતાવનારું હોય, લાવીને દેખાડે તો આપણને ખબર પડે કે આ બધી વસ્તુ આપણી પાસે છે અને આપણે એનો યુઝ કરતા નથી। એ પણ પોતે પોતાના પોતે આજે સવારમાં મને વિચાર આવ્યો કે પૂર્વની ભવમાં સાધના કરી હોય ને તો જ આ નિકુંજ ગુરુજીનું જીવન આપણે જોઈએ ને તો ધાંગધ્રાથી માંડીને એમણે કેટલી સાધના કેટલા માણસે પાસે રહ્યા છે, લિટરલી રહીને સાધના કરીને બધું જ્ઞાન મેળવ્યું। એમને આ બધું ખાલી લાવ્યા નથી, કેટલા બધા માણસે એમની આશીર્વાદ લઈ અને ભક્તામરને આજે આટલું બધું મોટા પાયા ઉપર પોતે બતાડ્યું છે। અને સાક્ષાત તો અમે ઉમરામાં હમણાં 2-3 મહિનાથી ચોમાસા પછી ઉમરામાં આવ્યા અને એમાં હું ગોચરી ગઈ હતી તો એક બેને એમ બધી વાત નીકળી કે હું અમદાવાદ ગઈ હતી, મને મારા નણંદે કીધું કે તમે આવજો અને મેં હિલિંગ કરી અને એમાં એ બેને એટલું બધું ક્રેઝ થઈ ગયો, એટલો બધો ખુશ થઈ ગયા અને બધું વર્ણન કર્યું અને એના દીકરાને ભણવામાં આગળ વધી ગયો। એના પછી મેં પણ લાવ્યું અને હું ભક્તામૃત તો કરતી ગણતી રહી, બધું બહુ શ્રદ્ધાથી કરતી હતી અને પછી મારા બા સાહેબને આંખમાં તકલીફ થઈ ગઈ તો મહિનો સુધી એટલી તકલીફ હોય એટલા બધા હેરાન થઈ, ડોક્ટરને દેખાડીએ, આંખ લાલ થાય, દુખે, આ થાય, બધું બહુ તકલીફ થઈ અને પછી છેલ્લે મેં કીધું હાલો આપણે આમાં કઈ ચોપડીમાંથી લાવીએ અને ચોપડી ખોલી અને 5મી ગાથા અને એનું ગાથા અને પછી એનું જે રુદ્ધિ મંત્ર બધું ગણ્યું અને રોજની 10 મિનિટ ખાલી 7 દિવસ કર્યું। એમાં તો મારા બા મહારાજની આંખ એકદમ જ ક્યોર ને ડોક્ટર તો બધા અમે તો એટલા બધા ડોક્ટરે તો બધું કીધું કે કશું છે નહીં, ટીપા નાખે બધું કરીએ પણ થયું એ બધું પત્યું અને થોડા દિવસ થયું તો અહીંયા બંને દાઢમાં દાઢ દુખે, એટલી બધી દુખે, ખવાય જ નહીં। એક દુખતી હોય તો બીજી સાઈડથી ખાય, બંને દુખે તો કેવી રીતે ખાવાનું। અને
પછી એમાં પણ ડોક્ટર પાસે ગયા તો ડોક્ટર તો કે આ દાંત પડાવી નાખો, આમ કરો ને કેપ કરાવો ને. મેં કીધું આ ધક્કા ખાવા છોડો, આપણે તો આપણે ભક્ત અમર બીજા કશું જ નહીં. અને મેં ફોન કરાવ્યો એમને તો કે 8મી ગાથા તમે ગણો, અને ખાલી 2 દિવસ 8મી ગાથા, રુદ્ધિ મંત્ર અને મોટો મંત્ર બધું મેં ક્લિયર 27 વખત ગાથા, 108 વખત 108 વખત અને જાપ કર્યો, અને બંને દાંત કાલે એમને બરાબર વાપર્યું, એકદમ જ કંઈ પણ એમને તકલીફ નથી. એટલે ખરેખર આમ ને આપણું પુણ્ય છે કે આપણા સુરત શહેરમાં નિકુંજ ગુરુજી આવ્યા છે અને ચોપડી મને મળી, અને પછી આ બોર્ડ વાંચ્યું એટલે મેં કીધું મારે જવું જ છે ગમે એમ કરીને. એટલે આપણે જૈન ધર્મ મળ્યો છે એની આપણને જો કદર હોય તો આપણે આ બધી વ્યવસ્થિત કરીએ ને તો ઓટોમેટિક આપણા જીવનનો સુખ આપણને મળ્યા વગર રહેશે ને. પરંતુ આપણે એના પ્રત્યે બહુમાન અને આદર ભાવ જે આપણને આપે છે એનું બહુમાન આપણે ખાસ રાખવું જરૂરી છે. અને આપણું નસીબ છે કે આપણે બધા અહીંયા ભેગા, પુણ્ય હોય ને જો ઈચ્છા પણ કરે પણ નસીબ માંદું હોય તો અહીંયા આવી ન શકે, પણ આ પુણ્યશાળી બધા આપણે છીએ કે આજે આપણે બધા અહીંયા ભેગા થયા છીએ. બધા ભાવથી કરજો, બહુ શ્રદ્ધાથી કરજો તો ઓટોમેટિક આપણને લાભ મળશે. બોલો શ્રી આદિનાથ ભગવાન કી જય. હાલો, ખૂબ સરસ સાધ્વીજી ભગવાન આપણને બધાને बात કરી છે. अभी कुछ अभी आप हम सभी लोगों को बैठे रहना है, थोड़े थोड़े दूर दूर हो जाइए. कुछ एक शुरुआत ऐसे अद्भुत नमस्कार महामंत्र, कुर्सी थोड़ी थोड़ी दूर रख दीजिए. हमें जस्मिता जी पूरा आज का एक कार्यक्रम का विधान कराएंगे. एक बार सभी लोग बुलंद आवाज, दो जीवंत चमत्कार आपने सुने हैं. आंखों की प्रॉब्लम, दाढ़ की प्रॉब्लम, और दूसरी नंबर की बात बता दूं कि ये जो साध्वी जी भगवान आए हैं ना, मैंने जिंदगी में कभी साध्वी जी भगवान को देखा है और साहिब जी भी शायद मुझे पहली बार मिल रहे हैं. सही बात है? एक बार जोरदार हाथ ऊपर करके तालियां बजाएं. बोलो श्री आदिनाथ भगवान की. तो ये साधना 3 दिन तक मुझे जितना भी आता है, हमारे धर्मेंद्र गुरु जी भी साथ में है, वो सारी चीजें आपको सिखाने वाले हैं. तो आपके सारे रिलेटिव को लेकर के आइए, थोड़े से रिलैक्स हो जाइए, थोड़े थोड़े दूर हो जाओ. चश्मा सभी लोग निकाल दीजिए. आइए, हमें सबसे पहले चरण के अंदर 10 मिनट हमें जस्मिता जी लेके जाएंगे. आदिमं पृथ्वीनाथ मादिमं निष्परिग्रहम् आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं स्तुमः. श्रीमते वीरनाथाय सनाथाय अद्भुत श्रिया महानंद सरुराज मरालाय हते नमः. कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा. कितने जन्मों के पुण्य एकत्रित होने के बाद हमें मनुष्य भव मिलता है, और उसमें भी जैन धर्म मिलना तो जैसे सोने पे सुहागा है. जैन धर्म में जन्म लेना यानी करोड़ों जीव में से एक जीव जैन धर्म को प्राप्त होता है, और एक आत्मा जब सिद्ध बनती है तब अनंत काय निगोद में से एक जीव बाहर आता है. देखिए हमारे पुण्य इतने प्रबल है. जैन धर्म मिला, मनुष्य भव मिला, परमात्मा की वाणी सुनी, आचार्य भगवान साधु साध्वियों का सानिध्य मिला, धर्मेंद्र गुरुजी और निकुंज गुरुजी जैसे महान पंडित गुरुजी मिले, और हमें जैन धर्म से जुड़े रखने के लिए, आत्म कल्याण के लिए, साथ ही साथ हमारी हेल्थ, हमारे शारीरिक और मानसिक कल्याण के लिए भी इन्होंने आज जो आयोजित किया है भक्तामर हीलर समिट. आप खुद देख रहे हो, लास्ट टाइम अहमदाबाद में हुआ था. आप बिलीव नहीं करोगे, लोग इतने खुश होके गए थे कि ऐसा समिट हर 6 महीने में होना चाहिए. और आज एक गुरुजी, एक पंडित वर्य इतना ज्ञान साधना गुरु भगवंतों से लेकर आज यहाँ पर अपने स्वद्रव्य से कौन करता है लोक कल्याण के लिए, हर एक व्यक्ति के दुख दर्द को दूर करने के लिए, आपके जीवन के आदि व्याधि उपाधि रोगों को हटाने के लिए आज ये आयोजन करते हैं. कितनी मेहनत होती है इतने सारे हीलर्स को कांटेक्ट करना, रूम बुक करनी, हॉल बुक करना, सबकी व्यवस्था सुचारू रूप से करनी. कितना समता भाव रखना पड़ता है पता है. हम तो थोड़ा कोई बरोबर जवाब ना दे ना, ऐसा हो जाता है अपना तो टेम्परेचर सीधे 7वें आसमान पर. एक तो बुलाना, ऊपर से जवाब नहीं आ रहा है. बट हेड्स ऑफ टू निकुंज गुरु जी. दूसरी बार मैं इनके समिट में आई हूँ. बहुत बहुत अनुमोदना निकुंज गुरु जी. और इस बार सूरत में उनका साथ दिया है धर्मेंद्र गुरु जी ने. आप दोनों गुरुवर के चरणों में कोटिश वंदन. और यहाँ पर पधारे हुए मेरे प्यारे प्यारे पुण्यशाली भाग्यशाली भाई बहनों को मैं जस्मिता जैन श्री सरस्वती साधना हीलिंग फाउंडेशन से आप सबको प्रणाम करती हूँ. आप सबका अभिनंदन करती हूँ. आप यहाँ आए, बाहर आई. किसी भी कार्य को सफल करने के लिए हमें क्या चाहिए?
आप जैसे श्रोतागण, आप जैसे पुण्यशाली दिव्य आत्माएं हमें चाहिए जो हमें समझे, हमें सुन सके। तो आपका भी कोटिश धन्यवाद कि आप यहाँ पर पधारे, अपना अमूल्य समय दिया। आइए एक छोटे से, हम सबके गुरु एक है, परमात्मा के बाद एक गुरु हम सबके हैं। कौन है? गौतम स्वामी। एक बार गौतम स्वामी को याद करते हुए 2400 तीर्थंकर परमात्मा की आज्ञा से महाविद्यालय क्षेत्र में विराजमान सिमंदर स्वामी आदि 20 विहरमान की आज्ञा से परम उपकारी लब्धि निधान गुरु गौतम स्वामी की आज्ञा से ढाई दीप में रहे हुए सारे आचार्य साधु साध्वियों की आज्ञा से, निकुंज गुरु जी जैसे पंडित वर्यों की आज्ञा से, मेरे माता पिता की आज्ञा से, आप सबकी आज्ञा से आज का यह मंगल कार्यक्रम मैं शुरू करूं। धन्यवाद। ठीक है, हम एक छोटी सी शुरुआत करेंगे महामंत्र नवकार के साथ। कहते हैं, जहाँ पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है, जहाँ मुनियों की वाणी हो वही उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। किस किस को नवकार मंत्र एकदम ऊंचा लगता है? वो सब लोग हाथ जोड़कर, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, क्योंकि यहाँ सारे पाप कट जाते जहाँ नवकार होता है, यहाँ सब पाप कट जाते जहाँ नवकारी होता है। आप और हम बचपन से नवकार सुनते आ रहे, पेट में थे तब से नवकार सुन रहे। तो सब लोग एक बार आंखें बंद करके महामंत्र नवकार की धुन के साथ, ओम नमो अरिहंतानम, ओम नमो सिद्धानम, ओम नमो आयरियानम, ओम नमो उवजायानम, नमो लोई सवसाहुनम, नमो लोई सवसाहुनम। ऐसो पंचन मुक्कारो सव पावपनासनो, मंगलानं च सव्वीसिं परममः वै मंगलम, परममः वै मंगलम। 2 मिनट ध्यान साधना में बैठेंगे। सर्वप्रथम सब लोग अपनी जगह पर कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें बंद। कुछ ही देर में हमारे चीफ गेस्ट द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम की मंगलाचरण रिबन कटिंग होने वाली है। बहुत ही अद्भुत अलौकिक पर्सनालिटी हमारे बीच आए हुए हैं, उन्हीं के हाथों होगी। तो आइए एकदम ध्यान में बैठते हुए परमपिता परमेश्वर का ध्यान करते हुए अपनी आंखें बंद। बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ, मैं पूर्णतया स्वस्थ हूँ। परमपिता परमेश्वर की अनंत कृपा, अनंत आशीर्वाद निरंतर मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। 2400 तीर्थंकर के यक्ष यक्षिणी की सहायता का सहयोग मुझे हर वक्त प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। हमारे घर के कुल देवी देवता, हमारे परिवार के कुल देवी देवता का आशीर्वाद का सहयोग मुझे प्राप्त हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। मेरे वडील, मेरे बुजुर्गों का निरंतर आशीर्वाद मेरे ऊपर बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है। इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में
जितनी भी दैविक शक्तियाँ हैं, जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज है, वह सारी दैविक शक्तियाँ, सारी पॉजिटिव ऊर्जा मेरे शरीर के, मेरी आत्मा के, मेरे मन के सारे विकारों को दूर कर कर, सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर कर कर मुझे एक नया जीवन, एक नई राह बता रही है, बता रही है, बता रही है। हर जगह से खुशियाँ ही खुशियाँ मुझे प्राप्त हो रही है। हर जगह से मेरे सारे काम पूरे हो रहे हैं। हर जगह से मुझे प्यार, मान, सम्मान मिल रहा है। हर कोई मेरा ध्यान रख रहा है। हर कोई मेरे लिए कुछ न कुछ कर रहा है। हे प्रकृति, आपने मुझे जीवन जीने के लिए खाना पीना दिया, ऑक्सीजन दिया, आपका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। ऐसे ही अपनी कृपा निरंतर पूरे विश्व पर, पूरे ब्रह्मांड पर बनाए रखेगा। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही बहुत सौभाग्यशाली है। अभी मैं जो भी मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, वह 27 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा, पूरा हो गया है। ऐसी भावना भाते हुए 2 मिनट आंखें बंद कर कर अपने कोई इसी कार्य को ध्यान करें कि वो पूरा हो गया है, उसको विजुअलाइज करें और निरंतर हर जगह से गोल्डन स्प्रिंकल्स, गोल्डन स्पार्कल्स आपके ऊपर गिर रहे हैं। हर जगह आपको सूर्य की किरणें दिखाई दे रही है और आपका वह कार्य पूर्ण हो रहा है। अपने आप को खुशी खुशी हंसते हुए उस मैनिफेस्टेशन को विजुअलाइज करना है, यानी देखना है। 2 मिनट सब आंखें बंद करेंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ओम या महामंत्र नवकार का उच्चारण होगा। आप अपने अंदर अपनी संकल्प को, अपनी इच्छा को पूरा होते हुए देखेंगे। जैसे ही आप अपनी इच्छा को विजुअलाइज और पूरा होते हुए देखें, अपने दोनों हाथों को आपने आंखों के सामने लाके रगड़ेंगे, एक दूसरे के साथ आराम से रगड़ते हुए। जब आपकी हथेली गर्म हो जाए, अपनी आंखों पर लगा के पूरे शरीर पे लगाएंगे और परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि आज का नया दिन, नई सुबह आपने हमें और हमारे परिवार को दिखाई है। हमेशा हमारे साथ रहना। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी अनंत कृपा से, अनंत आशीर्वाद से हम सबके जीवन में, हम सबके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, प्रसन्नता, आरोग्यता, रिद्धि, सिद्धि, यश, कीर्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, प्राप्ति हो, प्राप्ति हो। सब जीवों का कल्याण हो, आनंद हो, मंगल हो। शुभम भवतु, शुभम भवतु, शुभम भवतु। मेरे ख्याल से सबको अच्छा लगा। एक छोटा सा, एकदम छोटा सा, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या था पता है, एक ट्रेलर था। बाकी हाइलाइटर्स तो यहाँ पर बैठे हैं और पूरी पिक्चर आपको निकुंज गुरुजी, धर्मेंद्र गुरुजी और हमारे बीच पधारे मयूर गुरुजी बताने वाले हैं। मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर बताया है कि ध्यान साधना और अपने आप को खुश रखने की विधि क्या है। जो मिला है बहुत है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। परमात्मा ने सबको चुन चुन के उनके हिस्से की खुशी दी है। उन्हें पता है कि आपके लिए क्या सही है, उन्हें पता है कि किस वक्त आपको क्या देना है। तो आइए आज के इस अद्भुत कार्यक्रम में हम जुड़ेंगे। हमारे निकुंज गुरुजी, पंडित वर्य, भक्तामर हीलर, वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित, मतलब इनके बारे में शब्द कम पड़ जाए,
इतने सरल स्वभावी, हमेशा हंसते रहते हैं। डांटना भी है ना तो हंस के ही डांटेंगे, पता ही नहीं चल रहा वो डांट रहे कि कुछ ऐसे सुना रहे। इतने प्यारे हैं और इतने सरल स्वभावी हैं। और इनके बारे में तो भाभी जी अच्छी तरह जानते होंगे कि वो कैसे हैं, बट बहुत अच्छे हैं। इतने हीलर्स को लेके चलते हैं। आज वर्ल्ड वाइड भक्तामर को जिन्होंने पहुंचाया है, अब किसी का भी नाम नहीं ले सकते। जब मानतुंगाचार्य ने जब बनाया होगा उन्हें भी नहीं पता होगा कि एक ऐसे पंडित वर्य आएंगे और मेरे इस भक्तामर को पूरे वर्ल्ड में फेमस कर देंगे। आज यूट्यूब देखो, गूगल देखो, हर जगह भक्तामर के लिए निकुंज गुरुजी ही दिखाई देंगे। हैट्स ऑफ टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए आगे की कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे निकुंज गुरुजी के साथ। बहुत सारी मेरी तारीफ कर दिया है। एक बार सभी लोग खड़े हो जाइए अपनी अपनी जगह के ऊपर। ये आज वो स्वर्णिम पल आ चुका है और तहे दिल से मैं हमारे धर्मेंद्र गुरुजी का और हमारे परम श्रावक, कॉरपोरेटर या गवर्नमेंट का नहीं कहूँगा, लेकिन इनको मैंने सुबह से जो देखा है ऐसा लग रहा है कि भगवान की रियल कृपा और जैन धर्म जिनको समझे हैं, ऐसे हमारे केतन भाई यहाँ पर बता रहे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत करेंगे। अभी अमृत सिद्धि योग का शुभारंभ हो रहा है, तो एक बार सभी लोग बाहर आ जाएंगे और एक रिबिन कटिंग का हम कार्यक्रम करके फिर हमारा आगे का कार्यक्रम संपन्न होगा। तो सारे लोग एक बार बाहर आ जाइए। बाहर ढोली भी आ चुका है और हमारे बीच में सौभाग्य है ऐसे। गुरु माँ को कितने साल हुए संयम जीवन के?